Jai Hind to all. I am Swanand. Welcome to Learn Villa. This is a prime place for every defense aspirant and get the complete guidance related defense examination. But our prime focus is on National Defense Academy examination. पहले दो वीडियो में भूषण सर ने आपको एनडीए एग्जाम का पैटर्न पूरा बता दिया होगा. So instead of wasting of time on that, we are going to learn geography subject. So first of all, you need to see the syllabus of geography. So have you seen it? Okay. So आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे, सो ज्योग्राफी एक मेजर चंक और मेजर रोल प्ले करता है एनडीए एग्जाम्स एग्जैक्टली ऑन गैट पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट में. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 10 to 13 क्वेश्चंस आर देयर इन फ्रॉम ज्योग्राफी. सो वी आर गोइंग टू लर्न हियर फर्स्ट ज्योग्राफी. आवर फर्स्ट टॉपिक इन ज्योग्राफी इज द यूनिवर्स एंड द अर्थ. So first of all, what is universe? Universe is all made up of galaxies, stars, planet and other galactic objects. So next, what is galaxy exactly? As you all know that the galaxies are in the part of the universe. So what is galaxy? Galaxy is where you got different kind of galactic objects such as solar systems, planets and stars. So our galaxy, it's Milky Way galaxy. In Hindi हमारे galaxy को हम बोलते हैं आकाश गंगा. Our आकाश गंगा is found by Copernicus and the Edwin. These are the scientists from the history. So here you can see the picture of the आकाश गंगा and आकाश गंगा, which is Milky Way galaxy. व्हाइट सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. दिस इज आवर आकाश गंगा, इट्स मिल्की वे गैलेक्सी, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है. ओके, यू कैन सी केयरफुली. ओके, सो आप लोगों ने देख लिया होगा. यू कैन डेफिनेटली हर्ड द स्टोरीज अबाउट बिग बैंग थ्योरी, पर्ल सेटिंग थ्योरी. या दिस थ्योरीज इज अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द गैलेक्सी. What exactly universe? What about the galaxy exactly? Okay, so next we are moving towards the solar system. Our solar system. So in solar system, sun is the center of our solar system, which is a major source of energy for all our universe. In our solar system, there are total 8 planets, starting from Mercury, which is the first near to the sun. Next is Venus. Next one is Earth. Then after the Mars. Then after Jupiter, Saturn and Uranus, and the last one is Neptune. These are the 8 planets and the sun are made up of our solar system. You can see the picture clearly here. Yeah. So now we learn about the speciality or specific identity of every planet. So first one is Mercury. Mercury is the smallest planet in our solar system. Then the next one is Venus. Venus is a totally gaseous planet, which is also known as a twin sister of our Earth. Yes, Venus is also known as a twin sister of our Earth. You can see here. Then the next one, our planet is Earth. Yes, Earth is also known as a blue planet. Blue planet. Why is blue planet? Because of oceans, because of water. Because of water, Earth is also known as blue planet. Yeah. The next one is Mars. मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट. यस, बिकॉज मार्स इज, जहां से हमारे अगर टेलीस्कोप से, अगर अर्थ से या आप किसी भी यूनिवर्स से अगर देखोगे मार्स को, तो आपको रेड नजर आएगा, इसीलिए मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट. नेक्स्ट वन इज जुपिटर. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. ओके, नेक्स्ट वन इज सैटर्न. अगर आप देखोगे सैटर्न को, अगर जहां पे और पिक्चर सैटर्न की पिक्चर आपने देखी होगी, तो वहां पे आपको नजर आएगा सैटर्न के आसपास एक रिंग है. ओके, यस, दिस इज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ सैटर्न. बहुत नंबर ऑफ रिंग्स आपको सैटर्न के आसपास नजर आएंगे. यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली हियर ऑन द स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट वन इज यूरेनस एंड द नेपच्यून. यूरेनस एंड द नेपच्यून आर वेरी फारदेस्ट फ्रॉम द सन. You can see overall total our solar system first, so you can clearly understand what exactly our solar system.
Okay. Okay, so next we are going to learn the different terms related to universe or galaxies. First one is stars, next comet, asteroids, meteoroids and satellites. So these are 5 important terms related to a galaxy or a universe. So first is stars. What is stars? Stars is a fully made up of gases. So the stars are fully made up of gases, so they are full of energy and full of light. That's why they are shining. You can see the picture here, what exactly it is. Then the next one is a comet. Comet is the part of sun's family, and the comet is revolving around the sun in their elliptical orbit. Sometimes क्या हो जाता है, कॉमेट अपना सन्स का इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो छोड़ के बाहर आ जाता है और वो यूनिवर्स में घूमता रहता है. समटाइम्स यू कैन सी द कॉमेट इन आवर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम. दैट शाइनिंग पार्ट जो रहता है वो हमको दिखने को मिलता है कॉमेट का. नेक्स्ट वन इज एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स, व्हाट इज एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स आर द स्मॉलर प्लैनेट्स और द डेब्रीज ऑफ द प्लैनेट्स. या जब दो प्लैनेट में कुछ कोलिजन हो जाता है तो उसकी कुछ डेब्रीज गैलेक्सी में या यूनिवर्स में फैल जाती है तो उसे हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स. अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखेगा मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको देखने को मिलेगा. यस, इज अ ह्यूज एस्ट्रॉइड बेल्ट इन बोथ ऑफ दिस प्लैनेट. यस. देन द नेक्स्ट वन इज मेटेरॉइड्स. मेटेरॉइड्स आर स्मॉलर देन द एस्ट्रॉइड्स, but these meteoroids are also different than the asteroids. Sometimes meteoroids are enter into the different atmosphere of the different planets, so they can seen as the falling star or shooting star. जब बहुत लोगों ने आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग नाइट आपको कुछ शाइनिंग स्टार और शूटिंग स्टार जो आपको फॉल होते हुए दिखता है, these are nothing but the meteoroids. Yes, you can see the picture clearly here. Next is satellite. So what is satellite? Satellite is any galactical object or a planet who can revolve around other planets. Yes, other planets. एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाता है या कोई अलग प्लैनेट है जो दूसरे प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं वो पर्टिकुलर प्लैनेट का. जैसे अर्थ का हमारा अपना सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून. वैसे जुपिटर, मार्स, सैटर्न, इनके भी अपने अलग अलग सैटेलाइट्स हैं जो उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मून. मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ एंड ओनली 59% पार्ट ऑफ द मून वी हैव टू सीन फ्रॉम द अर्थ. या ओनली 59% पार्ट हम मून का अर्थ से देख सकते हैं. आपको यहाँ पे पिक्चर देखने को मिलेगा कितना पार्ट हम मून का यहाँ से देख सकते हैं. और मून जो भी है, मून भी सन से ही लाइट मिलता है. ऐसा नहीं है कि मून का कुछ अलग अपना लाइट है. यस, मून इज ऑल्सो शाइनिंग बिकॉज ऑफ द सन. एंड द मून को अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स लगते हैं. यस, मून हैव टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ 27 days 7 hours and 43 minutes. Yes, so this is the basic about moon related to earth. So now we are going to learn about our planet earth, which is the most important thing. Okay, we can learn here about earth. First of all हम earth का shape, उसका time period, उसका revolution, rotation and different phases of earth यहाँ पे learn करेंगे. So first of all shape of the earth is spherical, but on the northern and the southern part से हम अगर अर्थ को देखेंगे it's quite flattened. flattened मतलब थोड़ा सा दबा हुआ है अर्थ वहाँ से. ओके, आपको पिक्चर में यहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आएगा what exactly the shape of the earth. Then the next is the revolution and the rotation, means movement कैसा है अर्थ का. अर्थ is revolve around the sun, सबको पता है, ये तो बेसिक हो गया यार. Earth is revolve around the sun. Earth revolves around the sun and Earth also rotate about itself. अर्थ को, सन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं, एज यू ऑल नो अबाउट इट. एंड अर्थ को अपना खुद का एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स लगते हैं. यस, मतलब एक पूरा दिन, और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक पूरा साल.
आपको पिक्चर में पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। Okay, so now we are going to learn different terms related to the earth. First one is a summer solstice. So what is summer solstice? Basically अभी आपको जानने के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, what is summer solstice? Summer solstice is, that means longest day in the year which is the 21st of June. Yes, आगे के वीडियो जैसे मैं डालूंगा वहां पे आपको समझ में आ जाएगा what exactly is the summer solstice, मतलब summer solstice कैसे हैपन होता है। Okay, the next one is winter solstice. Winter solstice which is the shortest day in the year, and the day is happen on 22nd of December. That the two important terms related to the earth. Next two terms are equinox. Equinox means the length of the day and the length of the night are same, equal. पूरे ईयर में आपको दो टाइम इक्विनॉक्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज ऑटम इक्विनॉक्स विच इज ऑफ 23rd ऑफ सितंबर एंड द स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन 21st ऑफ मार्च। ये दोनों दिन में आपको डे और नाइट का जो लेंथ है वो इक्वल देखने को मिलेगा, दैट मीन्स 12 आवर अप्रोक्सीमेटली। सो द नेक्स्ट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। दीज आर द सो इंपॉर्टेंट टर्म्स you need to know, latitudes and longitudes. So first is latitude. What is latitude? Latitudes are imaginary horizontal lines on the earth. और उस लैटिट्यूड्स में आपको बीच में एक सेंटर लाइन मिलेंगी जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है हॉरिजॉन्टली। वन इज अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मींस ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का है उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली। ओके, देन द नेक्स्ट वन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर, दैट्स द सेंटर लाइन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्री, द मेजरमेंट इज 0 डिग्री। और वहां से इक्वेटर से 0 डिग्री से आप नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, वहां पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको एक लाइन मिलेंगी, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट इज इट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यस। और अगर 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर से अगर आप सदर्न पार्ट में जाएंगे, वहां पे आपको 23.5 डिग्री साउथ को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यस, 23.5 डिग्री साउथ को आपको देखने को मिल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑन द अर्थ एंड लैटिट्यूड्स आर यूजफुल टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन। यस, अर्थ पे अगर किसी का लोकेशन आपको डिफाइन करना है तो लैटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये पिक्चर आपको क्लियरली देख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यस, जैसे मैंने बोल दिया कि इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड नीचे का है सदर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टॉप मोस्ट पोजिशन और टॉप मोस्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, वो आपको लोकेट करने को मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। यस, उसका मेजरमेंट है 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको नॉर्थ पोल मिलेगा। और साउथ में ऐसे जैसे आप जाओगे वहां पे आपको 66.5 डिग्री सदर्न पोल, साउथ पोल मिलेगा। आपको पिक्चर में क्लियरली देखेगा वहां पे साउथ पोल, कहाँ पे नॉर्थ पोल है। इसका मेजरमेंट है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। और नॉर्थ पोल कहाँ पे लाई करता है? वो है आर्टिक सर्कल। नॉर्थ पोल को हम ऐसे और बोलते हैं आर्टिक सर्कल, सेकेंड नेम इज आर्टिक सर्कल, एंड साउथ पोल इज ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक सर्कल। You can see the image clearly. Arctic Circle and Antarctic Longitudes are imaginary vertical lines drawn on Earth, जिसे हम लॉन्जिट्यूड, आपको सीधे लाइंस अर्थ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे, उसे हम लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। और लॉन्जिट्यूड आर बेसिकली यूज टू डिफाइन द टाइम, या पूरे दुनिया का टाइम आपको डिफाइन करना है तो वहाँ पे लॉन्जिट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो टाइम हम कहाँ से डिफाइन करते हैं? वहाँ यहाँ पे आपको एक प्राइम मेरिडियन, एक लाइन डार्क देखिए, प्राइम मेरिडियन, इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन इज अ पास थ्रू लंदन ग्रीनविच। आपने सुना होगा ग्रीनविच मीन टाइम। यस, ग्रीनविच मीन टाइम मीन्स वहां से पूरे दुनिया का टाइम डिफाइन हो जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम इज पासेस थ्रू लंदन ग्रीनविच। इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, दैट मीन्स इंडिया इज अ 5 hours and 30 minutes अहेड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। यस, आपको स्क्रीन पे अच्छे से देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे आप लैटिट्यूड्स में आपको इक्वेटर देखने को मिल गया जहाँ से अर्थ डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन है, मतलब लॉन्जिट्यूड्स जो है वो अर्थ को डिवाइड करता है इक्वली, तो वो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन इज पासेस थ्रू पैसिफिक ओशन एंड देयर इज वन नैरो पैसेज इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेट।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमेशा एनडीए में, वेयर इज अ बेरिंग स्ट्रेट और इंटरनेशनल लाइन पासेस थ्रू वेयर, सो दैट इज बेरिंग स्ट्रेट. Bering Strait is a strait between the two land masses, which one is from Russia and second is USA. So next is we are going to learn here eclipse. जैसे अर्थ के बारे में हमने अभी पूरा जान लिया है, what exactly latitudes, longitudes, अर्थ कैसे डिवाइड होता है, और अभी हम जानेंगे eclipse, yes, ग्रहण, हिंदी में उसे हम बोलते हैं ग्रहण. So there are two types of eclipse. One is a solar eclipse and second is a lunar eclipse. So first जानेंगे what is eclipse. Eclipse means earth, moon and sun they comes in a straight line. Yes, जब earth, sun and moon एक straight line में आ जाते हैं उस phenomenon को हम बोलते हैं eclipse. So first one is a solar eclipse. So what is solar eclipse? Solar eclipse is that means the moon is come between earth and sun. sun और earth के बीच में जब moon आ जाता है उस phenomenon को हम बोलते हैं solar eclipse. And solar eclipse always happen on new moon. Just there are two phases of moon. सबको पता है दो फेजेस है मून के, एक न्यू मून होता है एक फुल मून होता है. न्यू मून मीन्स व्हाट, एक सिंपल भाषा में बताया दिया जाएगा तो मून आपको दिखेगा ही नहीं, उस डे पे आपको मून दिखता है नहीं, ये पूरा ब्लैक हो जाता है, दैट इज अ न्यू मून. और उसी टाइम पे होता है सोलर इक्लिप्स. आपको पिक्चर में पूरा दिख रहा होगा व्हाट एग्जैक्टली इट इज. Okay, the next one is a lunar eclipse. Lunar eclipse means the earth is come between moon and sun. मून और सन के बीच में जब अर्थ आ जाता है उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स. यस, एंड लूनर इक्लिप्स ऑलवेज हैपन ऑन फुल मून. सिंपल भाषा में फुल मून मीन्स पूरा मून आपको देखने को मिलेगा, वो पूरा मून आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट फिनोमेनन इज फुल मून. और लूनर इक्लिप्स ऑलवेज हैपन ऑन फुल मून. You can clearly understand what exactly the lunar eclipse happen on full moon. Okay, so next the last topic is the crust. अब जैसे कि आपने अर्थ के बारे में अभी पूरा जान लिया है, बाहर का यूनिवर्स और अर्थ से मून का क्या रिलेशन है, अर्थ से सन का क्या रिलेशन है, अदर प्लैनेट्स का क्या रिलेशन है, ये हमने अभी जान लिया है. अभी लास्ट पार्ट है कि अर्थ, व्हाट इज अर्थ इज मेड अप ऑफ. अर्थ बना किससे है, बाहर का तो जान लिया पर अंदर का क्या है भाई, तो अभी जानेंगे अर्थ. व्हाट एग्जैक्टली द अर्थ. There are the three. Earth is divided into the three parts. You can clearly see in picture. Earth कैसे तीन पार्ट में डिवाइड होता है. The first part जो अपर जहाँ पे हम रहते हैं जमीन का पार्ट, वहाँ से 30 किलोमीटर नीचे, अर्थ के नीचे 30 किलोमीटर तक हम जाएंगे, उसे हम बोलते हैं अर्थ का क्रस्ट, which is also known as earth crust. Okay, this is known as earth crust. Then the second part from crust 30 kilometer from the deep, from 30 kilometer to 2800 kilometers तक कहते हैं मैंटल. व्हाट इज इट्स मैंटल, पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अर्थ मैंटल. एंड फ्रॉम 28 एंड डाउन देयर इज नोन एज अर्थ कोर. सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ. देयर इज फर्स्ट वन इज अर्थ क्रस्ट, सेकंड इज मैंटल एंड द लास्ट इज कोर. ओके, सो डन विद द टॉपिक. अगले आने वाले वीडियोज में हम हमारे ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. So at the end, like this video, share it and subscribe our channel to get the notification of each video. Jai Hind.